Hello everyone, welcome back to Deb with Pradeep. In previous class, we saw about exception handling in Spring Boot. We saw two annotation, one is at the rate rest controller advice and at the rate controller advice. At the rate controller advice generally use in that view annotations and at the rate rest controller we use in HTTP REST API. Okay, so अपन ने दो वो बना लिए थे। एक सिंपल क्लास बनाई थी अपन ने जो अपन एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, कस्टम एक्सेप्शन, एंड द अनदर वन क्लास टू हैंडल एक्सेप्शंस। ओके, सो टुडेज अ टॉपिक इज स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, अभी क्या हो रहा था, जो अपनी जितनी भी एपीआईज थी, रेस्ट एपीआई वगैरह, वो पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। ठीक है, तो अब उनको क्या करना है, अपन उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि सारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स में होता रहता है। जैसे अगर मुझे लॉगिन करना है तो उसके लिए मुझे आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए अपन को। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड यू ऑथेंटिकेशन एंड द ऑथराइजेशन। तो लेट अस ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इज द फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. It provides features like authentication, authorization, password encryption, CSRF protection, and JWT authentication and protection against common web attacks. Uh, let us assume, what is authentication? Authentication means who are you? Means authentication is the process of verifying the identity of a users. जैसे अपन कोई भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में लॉगिन करते हैं, अपन उसमें आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो अपन उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि भाई ये मेरा आईडी, ये मेरा पासवर्ड है, इससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, so it generally it's who are you. Okay, suppose you open a shopping website, my username is Pradeep and my password is password123. If both are correct, you are successfully login. If anyone is incorrect, then invalid credential. Okay, so Spring Security check the username and password before allowing logins. Okay, अब second concept आता है authorization. What is authorization? Authorization means what you can access. Okay, for example, authorization decide what a logged in user is allowed to access. Okay, it answered the question, what are you allowed to do? Okay, so example, suppose there are two users. Okay, one is admin and another one is customer. Okay, so admin can add product, admin can delete product, admin can view product. Okay, but customer only view product and place order. Okay, तो ये बताता है कि आप क्या एक्सेस कर सकते हैं. Okay, authorization mean a customer should not be able to delete a product. Okay, why? Because Spring Security check the user's role before allowing access. तो ये क्या करता है, Spring Security आपको रोल भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडमिन का रोल हो गया, कस्टमर का रोल हो गया, डिलीवरी मैन का रोल हो गया, ये सब प्रोवाइड करता है अपना Spring Security. ओके, तो ये क्या करता है, मेनली कुछ ऐसे अटैक से बचाता है अपन को जो जनरली होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन सिक्योरिटी अटैक्स. अपन कुछ प्रोटेक्शन देखेंगे, ये अटैक्स होते हैं कॉमन सिक्योरिटी के. ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम मैनी कॉमन अटैक्स. ओके, जैसे फर्स्ट हो गया CSRF. व्हाट इज CSRF? CSRF is an attack where a logged in user is tricked into performing an action without their knowledge. CSRF एक अटैक होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, यूजर्स को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है बैकएंड में, और वो कहीं पे क्लिक कर देता है, उसकी ट्रिक रहती है और वो कुछ और रन कर रहा होता है बैकएंड में. ओके, सिंपल एग्जांपल, इमेजिन you are logged into an online shopping website. Okay, while browsing another website you click a fake button. Okay, without your knowledge, that website send a request to your shopping account to change your delivery address. Okay, you made a payment. Okay, and after the payment, okay, that one button you click that change your delivery address without you knowing. Okay, so even though you didn't intend to do it, but your browser sent the request because you are already logged in. Okay, that's why how Spring Security protect. Spring Security generate a unique CSRF token. Okay, एक टोकन रहता है जो कि आपके बैकएंड में वर्क करता है. ठीक है, वो उसके एक्सेस से ही आपको कुछ परमिशन देनी होगी. ओके, उसकी उसकी परमिशन से ही आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं. कुछ भी चेंज करना है आपको उसकी टोकन की जरूरत पड़ेगी. Whenever a form is submitted, the token is sent with the request. Spring verify the token. If the token is missing or invalid, the request is rejected. Okay, तो ये क्या होगा, वो चेंज होने से बचाएगा, अनऑथराइज एक्सेस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगा. दिस प्रिवेंट फेक वेबसाइट फ्रॉम सेंडिंग अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट. ओके, the another one attack is session fixation attack. What is session fixation?
A session fixation attack happen when an attacker try to force a user to use a known session ID. फॉर एग्जाम्पल अपन ब्राउजर देखते हैं, ऐसे मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ, तो आप ब्रेव में अगर जाएंगे तो डेवलपर ऑप्शन आता है, ठीक है। अब मेरी गिटअप जो प्रोफाइल है वो खुली हुई है मेरे ब्राउजर में, ओके। तो अगर वो सेशंस है उसकी हेल्प से कोई भी अटैकर रहेगा तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसमें सारी परमिशन ऑलरेडी रहती हैं ब्राउजर्स में, तो वो सेशन रहता है, ठीक है। तो आफ्टर द यूजर लॉग इन द अटैकर यूज द सेम सेशन आईडी टू एक्सेस द अकाउंट, ओके। सिंपल एग्जांपल, इमेजिन you entered a shopping mall, okay. The security guard gives every visitor to a visitor card, okay, one visitor card. An attacker secretly give you a fake visitor card before you entered, okay. मतलब रियल वाला उसके पास रह गया, आपको फेक दे दिया. If the mall continue using the same card after you verify your identity, the attacker can also use the card, okay. So how Spring Security protect these? Then Spring Security automatically create a new session ID. Old session ID become invalid. Okay. जब भी क्या होगा, जब भी अपन लॉगिन करेंगे तो अपने पास एक टोकन आ जाएगा, ओके। वो टोकन की एक सेशन आईडी रहेगी और उसका एक टाइम रहेगा। वो सेशन आपने लॉगिन किया, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉगिन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका टाइम आउट हो जाएगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो उसके लिए वो नया टोकन आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अटैकर से बचाती है सेशन अटैकर से, ओके। सो द अटैकर सेशन आईडी इज यूजलेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल दैट अपन ने हाइबरनेट्स में भी देखा था, HTTP डॉट सेशन मैनेजमेंट डॉट सेशन फिक्सेशन डॉट माइग्रेट फिक्सेशन, तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है सेशंस के। अब जो थर्ड अटैक है अपना वो है क्लिक जैकिंग। व्हाट इज क्लिक जैकिंग? क्लिक जैकिंग tricks user into clicking something different from what they see. For example, you visit a website that show a large button icon, okay, claim your gift. Most websites, okay, आपने देखी होंगी, but behind the button an invisible page from your banking website is loaded, okay. Let's assume you have two different tab, okay, in one browser, okay. So if you click in one tab you are log in your bank account, okay, and in another website you are open some e-commerce website. If you click that button, maybe your sessions is hijacked, okay. So when you click your claim gift, you actually click the button banking buttons, okay, without realizing it. So you may approve a transaction. How Spring Security protect this? Spring Security protect your application from being displayed inside another website using iframe protection. iframe protection क्या होता है? जो उसके बैकएंड में जो चीज चल रही है वो आपको शो कराती है, वो चीज फ्रंट एंड की चीज को छुपा के। तो दैट दिस ब्लॉक क्लिक जैकिंग अटैक्स। ऐसे एक होता है जो सबसे बेसिक पहले लोग यूज करते थे, वो था ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? अ ब्रूट फोर्स अटैक इज अ व्हेन अ हैकर कीप ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड until one works. Simple example, suppose your email is pradeep@gmail.com, okay. The attacker tries password again and again, again and again, again and again. Thousands or even millions of password attempts are made automatically. Eventually weak password can be guessed easily. So how to prevent brute force attacks? First, rate limiting. Allow only a limited number of login attempts. 3 attempts, 4 attempts enough, okay. Only 5 login attempts are allowed in 1 minute. These types are also you can, okay. And the captcha. After several failed attempts, show a captcha. This ensures the login attempt is made by human, not a bot. Okay. Because bot can't easily read that captcha. Okay. Then third one is account lock. Okay. Lock the account temporarily after multiple failed login attempt. अगर मेरे 4 fail attempt हो चुके हैं, 5 हो गए, उनके बीच में मैं एक लॉक्ड टाइम सेट करूंगा, उसके बाद ही वो लॉगिन कर सकता है दोबारा या फिर पासवर्ड डाल सकता है, ओके। देन फिफ्थ वन इज फेल्ड अटेम्प्ट, अकाउंट लॉक्ड फॉर 10 मिनट्स। जैसे ही उसने 10-15 खत्म किए, लॉक्ड कर दो अकाउंट को, ओके। एंड लास्ट वन है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो अपन को ऐसा पासवर्ड डालना जो इजीली गैस ही नहीं हो सके, क्योंकि जो ब्रूट फोर्स रहता है वो वीक पासवर्ड को इजीली गैस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो कोई भी गैस नहीं कर पाएगा, ओके। बिकॉज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आर मच हार्डर टू गैस। अब भाई स्प्रिंग सिक्योरिटी, हाउ टू हैंडल पासवर्ड हैंडलिंग, we have to know what is password hashing. Password hashing should never be stored in a plain text, okay. Instead they should be stored in a encrypted hashed form, okay. अभी क्या होता है, जो अपन यूजर नेम में जो लॉगिन करते टाइम में जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड एज इट इज सेव नहीं होता है अपने डेटाबेस में, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, ओके। वो ऐसे फॉर्म में होता है जिसको एनालाइज करना डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो स्प्रिंग security commonly use bcrypt, okay. Bcrypt is a algorithm that we use to encrypt the password, okay. For example, user password is password 123, but stored in database what is this, okay.
So it provided that Spring security. Even if the database is hacked, the original password cannot be easily recovered because it is already encrypted, and no one know how much a hashing technique it will implement. Okay. So next one is Spring Boot integration. Main topics. Spring security integrate easily with Spring Boot. Okay. And simple add the dependency and Spring Boot automatically configure basic security. And you can later customize authentication, authorization, login pages. We use JWT, OAuth2 also. What is JWT? JWT is a JSON Web Token. What is JWT? JWT is a secured token used for authentications. Instead of storing user session on the server send the token after successful login. The client store this token and send it with every request. So your every REST API web services is successfully secured. Okay. So this is a normal flow of that JWT token. Simple flow, user login, server verify credential, then server generate JWT token, client store the token. Every API request include the JWT token. Server validate the token and then access granted. ओके, तो ये तो थ्योरी हो गई। ये मैं आपको गिटअप पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। अब चलो बात करते हैं हमने प्रैक्टिकल्स की। ओके, तो सबसे पहले अपन कहाँ चलेंगे? अपन जाएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। ओके ओके, लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल ऑथ सर्विस। ओके, कॉपी and the paste. We use Maven, Java, Spring Boot 4.1.0. Okay, and we remove this extra. Okay, add a dependency only web services because we can't or we are not using that database for now. Okay, so let's generate. Go to D, then YT sessions, and यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो इसको अब करते हैं अपन unzip. Okay, extract all, click enter, and then cut, and then paste. Okay, so now open your IntelliJ IDEA, the best. Okay, it's open. Okay, so open that project. Okay, go to local disk D by T session and this auth services. Select folder. Okay, press the project. Okay, तो ये अपना प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ अपने रिजॉल्व कर रहा है मेवन डिपेंडेंसीज को। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले इसमें एक डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। ओके, तो पहले ये रिजॉल्व हो जाए मेवन डिपेंडेंसी। ओके, then we see it take a little bit time. It may be done. Yeah, the last one dependency. Okay, तो अपन को सबसे पहले करना है, सबसे पहले आपको खोलना है pom.xml फाइल। ओके, तो इसमें पहले अपन वो दो कंट्रोलर था वो बना लेते हैं इसका। ठीक है, एक सोर्स, देन गो टू मेवन मैन एंड जावा। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं, एक बनाते हैं कंट्रोलर पैकेज। ओके, कंट्रोलर एंड सेट दिस कंट्रोलर। अपन देखते हैं अपने नोट्स में जाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो वेलकम कंट्रोलर। ओके, क्रिएट वन क्लास, नेम ऑफ क्लासेस वेलकम कंट्रोलर। ओके, तो अपन क्या करना है इसमें? अपन ने सिर्फ मैं दो, एक गेट मैपिंग और एक पोस्ट मैपिंग, दो चीज़ देंगे। ठीक है, इसमें अपन उसमें क्या होगा अपन चेक कर लेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो लेट्स कॉपी दिस, गो टू द प्रोडक्ट एंड देन पेस्ट। ओके, import class, import
रिक्वेस्ट मैपिंग इंपोर्ट। ओके, तो अपन ने दो गेट मैपिंग कर ली, हेलो हेलो। तो अभी अगर मुझे इनको एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ब्राउजर पे जाऊंगा। ओके, लोकल होस्ट 8080 एंड दिस कॉपी। ओके, कॉपी दिस, गो टू ब्राउजर, पेस्ट लोकल होस्ट 8080 एंड पेस्ट दिस। ओके, अगर मैं यहाँ पे हाई लिखूँ अभी रन करने के बाद, पहले रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट। ओके, गो टू योर मेन क्लास, रन द प्रोजेक्ट। ओके, रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, तो लेट्स गो एंटर। इट प्रिंट हाई। ओके, अगर मैं यहाँ पे करूँ हेलो, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हेलो, तो हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है ना, सारी जो मेरी वेब सर्विसेज हैं वो अभी सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मैं जाऊँगा अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में। ओके, देन गो टू डिपेंडेंसीज, या ये रही। ओके, तो मुझे क्या करना है, बस इसको पेस्ट करना है। ठीक है, और इसमें से ये वेब एम्बेसी हटा दूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिक्योरिटी। ओके, तो इसको रिसॉल्व कर दूंगा। अभी क्या होगा, अभी जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो सारी वेब सर्विसेज है ना, सारी रिक्वेस्ट है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर्ड हो चुकी हैं। ओके, तो स्टॉप एंड रीरन। ओके, तो ये प्रोजेक्ट रन करके सक्सेसफुली। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हाई करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपन को सिक्योर्ड हो गया। ये साइन इन मांग रहा है अपन को, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो अब यूजर नेम क्या है, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट यूजर ही होता है, और पासवर्ड है ना आपकी कंसोल में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये जब भी आप रन करोगे हर बार चेंज होगा, और ये आपका पासवर्ड रहा यहाँ पे। मेक श्योर देयर इज नो स्पेस बिटवीन योर पासवर्ड। ओके, तो दिस, कॉपी दिस एंड पेस्ट इन योर ब्राउजर। ओके, हाय। तो इसने क्या किया, जो भी अपने वेब सर्विसेज थी एचटीटीपी रिक्वेस्ट, उन दोनों को उसने सिक्योर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब भी आप रीरन करोगे यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये सभी को कर रहा है, लेकिन अपने जो प्रोजेक्ट आपने देखे हैं, जो भी आप ई कॉमर्स देख लीजिए, कोई सा प्रोजेक्ट, चाहे फ्लिपकार्ट देख लो, चाहे अमेजोन देख लो, वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें रोल पे डिपेंड करती हैं, एडमिन रोल एंड दी कस्टमर रोल। ओके, सम आर सिक्योर्ड, सम आर नॉट सिक्योर्ड। तो अपन को एक ऐसी स्ट्रेटेजी करना है जिससे कुछ मेरी यूआरएल्स हैं वो सिक्योर्ड रहें और कुछ अनसिक्योर्ड रहें। तो उसके लिए ना अपन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, जिसके लिए अपन एक कॉन्फ़िग फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िग फाइल का यहाँ पे एक और आपको बनाना पड़ेगा पैकेज। ओके, दैट इज कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग फाइल को कभी रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट रन करती है। ओके, रन इट्स ओन। ओके, तो अपन ये करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम से बना लेते हैं। ओके, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसको अपन किससे करेंगे, @कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली सबसे पहले चलेगी। अगर आपको इसको देखना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे पहले वो कर देते हैं। ओके, तो अब इसको है ना अपन इसमें चलाते हैं। ओके, डीबग मोड में, तो देखते हैं कि आपको पता चल जाएगा जब आप कंसोल में कि पहले कौन चलता है, वो प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया अपना। ओके, देन गो टू दिस एंड स्टॉप इट, रन सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ओके, तो ये पासवर्ड जनरेट हो गया और ये ऑटोमेटिकली चल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन,
इसमें अपन वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, इसमें अपन रोल प्रोवाइड करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, फ़िल्टर चेंज देंगे कि क्या-क्या फ़िल्टर होना चाहिए इसमें, ऑथराइज़ेशन, फिर ऑथेंटिकेशन एंड बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है इसमें। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक क्लास बनाएँगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग एंड उसमें से काफ़ी डिटेल देखेंगे। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये कोर्स अपन काफ़ी डीप में लेके जाने वाले हैं और हर एक डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।